ओके राजे, कल ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ? ਐਸੈਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ property owned by the business. It will help the firm to get या derive economic benefit in the future. Assets cover ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ possession ਆ, ownership ਆ, ਕੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਚ? Land, building, machinery, computer, car, vehicles ਕੋਈ ਵੀ, stock। ਫਿਰ ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ, ਡੈਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਸ਼, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਐਸੈਟਸ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਾਇਬਲ ਆ, ਪੇਬਲ ਆ ਅਸੀਂ ਟੁਵਰਡਸ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਲਾਇਰਸ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ, ਦੈਨ ਲੋਨ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ। ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ capital, capital ਕੀ ਹੁੰਦਾ? amount invested by the owners into the business is called capital. It is also called owner's equity or net worth. Then drawings, it refers to the amount or money or goods withdrawn by the owner from the business for personal use. फिर चार्ट सीखिया सी, होम टू बिजनेस जब पैसा मूव करता कैपिटल, बिजनेस टू होम जाता था ड्राइंग्स। गुड्स की ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ, it refers to the physical stock of items of trade that are purchased for the purpose of sale। ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ। in other words, these are the items in which the business deals, ਜਿਹ ਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। then these are stock in trade of the business। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ in trade ਹੈ। for a grocery shop, goods ਕੀ ਆ? sugar, rice, wheat, all are goods। crockery shop ਲਈ plates, cups, spoons ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? goods। फर्नीचर शॉप ਲਈ ਟੇਬਲਸ, ਚੇਅਰਸ, ਬੈੱਡ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਗੁੱਡਸ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਐਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਯੈਸ, ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼ਾਪ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਕੀ ਆ? ਗੁੱਡਸ। ਬਟ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਕੀ ਆ? ਐਸੈਟ। ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼ਾਪ ਲਈ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕੈਨ ਵੀ ਐਸੈਟ ਐਂਡ ਗੁੱਡਸ ਐਸ ਵੈਲ, ਯੈਸ অর ਨੋ? ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਐਸੈਟ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਗੁੱਡਸ ਵਰਡ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਪਰਚੇजेस ਵਰਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਚੇज ਰਿਟਰਨ ਅਗਰ ਉਹ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਲਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਸਮਾਨ ਸੇਲ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਪਰਚੇज ਰਿਟਰਨ, ਪਰਚੇज ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਮਾਨ ਆਂਦਾ, ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨਸ ਆਊਟਵਰਡਸ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਆਊਟਵਰਡ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਫॉर ਪਰਚੇज ਰਿਟਰਨ। ਦੈਨ ਸੇਲਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ, रिटर्न च वापस आ जाता, मीनस रिटर्न इनवर्ड इज द नेम फॉर सेल्स रिटर्न। कोई डाउट नहीं। उस तो बाद एक चीज आप एक्स्ट्रा लिखी सी, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, जो आप हले समझिया नहीं है। असी की क्या? परचेज का नाम, परचेज का बैलेंस डेबिट बैलेंस, ओदी रिटर्न पे ऑपोजिट होगी क्रेडिट। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है, ओदी रिटर्न ऑपोजिट मीनस डेबिट। इतना किया सी कल। नेक्स्ट लिखो, दिस वाज पॉइंट नंबर 5। सो आप 6th पॉइंट करिए। 6th पॉइंट लिखो, परचेजेस। परचेजेस वर्ड की क्या यूज किधर लिए होना? टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ गुड्स, है ना? तो लिखो इट इज यूज्ड, या दिस वर्ड इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ गुड्स which includes number 1, goods for the purpose of sale,
सेकेंड, रॉ मटेरियल्स raw materials for the production of finished goods. पूरा ही लिख दो। ठीक है, परचेज ਦੇ टाइम देखो एक ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ। ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਮੀਨਸ ਜੋ ਖਰੀਦਿਆ ਸੇਲ ਪਰਪਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਗੀ ਖਰੀਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀ, ਮੈਗੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋड्यूस ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਪਰਚੇज ਐਂਡ ਸੇਲ। ਬਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਕਰੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਗੀ ਰੱਖਦੇ, ਮੈਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ ਦੀ ਆਈਟਮ ਆ, ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ। ਬਟ ਬਿਸਕਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਬਿਸਕਿਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਨਸ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਘੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਦੇ ਲਈ, ਫॉर द प्रोडक्शन ऑफ ਬਿਸਕਿਟਸ, ਮੀਨਸ ਫॉर द प्रोडक्शन ऑफ आवर फिनिश्ड गुड्स। ਸੋ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਪਰਚੇजेस ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਯੈਸ অর नो। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਰੀਜ਼ਨ? ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਦੇ ਲਈ ਆ, ਜਸਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ ਲਈ, ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬਣਾਣੇ, ਪ੍ਰੋड्यूस ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ। क्लियर है जब? सो परचेजेस कैन बी, अगेन आगे लिखिए, देखो परचेजेस कैन बी कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। परचेजेस कैन बी कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेज किनू कहते हैं, किनू कहते हैं, जब ਅਸੀਂ गुड्स परचेज ਕੀਤੇ और रिटर्न्स कैश ਨਾਲ ही पे करता, इन कैश। ठीक है, भी लिखो, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर कैश, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। सप्लायर्स द अदर नेम, बोलो, डेटर्स या क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स। ठीक है, स्टार्टिंग यही चीजें गलत होंगी, सो रिपीट करते रहना आप, ठीक है। सप्लायर्स मींस क्रेडिटर्स,
एंड डेटर्स कौन है? कस्टमर्स। ठीक है राजा, दिस वॉज योर 6th पॉइंट। हो गया नोट। 7th लिखो, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मीनिंग की है? देखो, किसी क्या सी गल, कोई रीजन हो गई, कोई क्वालिटी नहीं पसंद आई, डिफेक्टिव चीज निकली, तो की होगा? परचेज्ड समान ਅਸੀਂ वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। लिखो, when goods purchased are returned to the, किन्हों वापस करोगे? सप्लायर नो। सप्लायर मीन्स, अगेन बोलो, क्रेडिटर। रिटर्न टू द सप्लायर और क्रेडिटर, because they were not as per specifications or defective, etc. ਇਹਦਾ अदर नेम बोलो, अदर नेम। रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड। सो लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर 8, सेल्स sales word is used for the sale of goods comma which may be manufactured goods or purchased goods। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और परचेज गुड्स। अगे ਇਹਦੇ भी टाइप्स की आने, की एजू करा जाए भी, कैश सेल और क्रेडिट सेल।
ਇਹਦੇ मीनिंग ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜਾ ਦੱਸੋ? ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ। Cash sales when the goods are sold to the customers for cash and credit on credit। इधर लिख देना, लिखो शाबाश। When the goods are sold to the customers for cash and this side when the goods are sold to the customers on credit। on credit मतलब उधार पे। ओके, क्लियर है ना राजन? नेक्स्ट लिखो। 9th पॉइंट लिखो, जर्नल। लिखो, इट इज अ subsidiary book फुल स्टॉप इन्हें लिखो ले। सेकेंड लाइन लिखो थी, इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कोई भी ट्रांजेक्शन है सब तो पहला जर्नल ते रिकॉर्ड होगी। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाल ली रिकॉर्ड होनी ना, कितने रिकॉर्ड होएगी वो? जर्नल्स। इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच transactions are recorded in which the transactions are recorded in a chronological order। chronological order। chronological केड़ा होंदा रहते? as per time, date wise। ठीक है, chronological order means बिजनेस से बैठे रिकॉर्ड्स कितना बनाओगे? डेट वाइज ही बनाओगे।
पहला 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होया, उस दिन एंट्री जो हुई ट्रांजैक्शन हुई रिकॉर्ड करोगे, 2 अप्रैल उस तो बाद करोगे, तो इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, आगे लिखो फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ठीक है, हाँ फॉर्मेट है। फर्स्ट कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, डेबिट ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਡੀਆਰ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਸੀਆਰ। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, मतलब किन्ने पॉइंट्स है इतने, किन्ने कॉलम्स है, 5 कॉलम्स। पहला डेट, इतने डेट पुट करोगे, पर्टिकुलर से अपनी जर्नल एंट्री पोस्ट करोगे। ठीक है, उस तो बाद लेजर फोलियो क्यों होंगे, जर्नल तो बाद सीखोगे लेजर, जर्नल तो बाद की सीखोगे लेजर। जर्नल एंट्री पोस्ट होंगी है लेजर से जाके, जब जर्नल तो लेजर च कोई एंट्री जानी है, बाद विच मैच करनी पै सकती कभी कि जर्नल की आह वाली एंट्री कितने गई है लेजर च, है ना। तो लेजर फोलियो मीन लेजर का पेज नंबर, जर्नल वाली बुक च लेजर का पेज नंबर नोटेड आ कि लेजर के किस पेज से आह वाली एंट्री गई है। लेजर फोलियो मीन लेजर का पेज नंबर, जिदा जर्नल चो मान लो लेजर के पेज नंबर 23 ਤੇ ਆ एंट्री गई, 24 ਤੇ ਆ एंट्री गई, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਐਰਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ पेज नंबर 23 ऑफ लेजर जाके ओपन कर ਲਾਂ ताकि कोई एरर ना आए। सो एक ही है एक तरह लेजर का पेज नंबर। ठीक है, फिर दो अमाउंट्स है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये ऊपर हले गल कर। फॉर्मेट क्लियर हो गया जर्नल का। ओके, इस तो अगली चीज लिखो, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नल एंट्री सीखने लिए रूल्स भी आने चाहिए। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग की पढ़ रहे हैं ਅਸੀਂ, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। तीन तरह के ਸਾਡੇ ਕੋਲ अकाउंट्स है, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट नाम हम याद करो कितना, पर्सनल, पर्सनल, पर्सन, पर्सन, पर्सन तो याद रहूगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाम याद समझ आया किधर रखना रूल्स, पर्सनल से पर्सन तो याद रखना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उस तो बाद रियल अकाउंट की कहता, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल की कहता, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बोलो दोबारा बोलोगे एक बार, पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल डेबिट व्हाट,
what comes in and credit what goes out. Nominals, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. ਹੁਣ याद रखने ਲਈ पर्सनल याद हो गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सन तो याद रखना। रियल एंड नॉमिनल ਲਈ इतो समझ आंदा ਜਿਹੜੀ चीज आ रही ਜਿਹੜੀ चीज जा रही, मतलब एक तरह एसेट्स की तरह सोच लो, कुछ आ रहा डेबिट कर दो, कुछ जा रहा क्रेडिट कर दो, उतो सोचना। नॉमिनल फे भी ना ये दोनों च कन्फ्यूजन होंगी। पर्सनल वाला पता लग गया, पर्सन के नाम तो सोचना रिसीवर एंड गिवर, बट फे भी रियल एंड नॉमिनल गलती हो जाती है। फिलहाल ਉਹਦੇ ਲਈ एक शॉर्टकट वे याद रख लो, नॉमिनल एक्सपेंसेस इनकम्स एन तो याद रह सकता, क्योंकि एक हिंट चाहिए हले, बाद तो तुहानू फिक्स हो जाना ਤੁਹਾਡੇ रूल्स। फिलहाल एक हिंट चाहिए माइंड ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ पेपर च। सो की सिक्ख्या, एन तो याद रख लो नॉमिनल्स इनकम एक्सपेंस वाला आना, ठीक है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रियल दे अंदर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल्स डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई डाउट? क्लियर? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲਸ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ? ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ। ਡੈਬਿਟ ਵਾਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨਲ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖੋ ट्रांजैक्शंस लिखिए। अच्छा जर्नल बना क्यों रहे हैं ਅਸੀਂ? बिजनेस दी ट्रांजैक्शंस ਨੂੰ रिकॉर्ड ਕਰਨ ਲਈ इन द ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मींस डेट वाइज, ठीक है। ट्रांजैक्शन ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? एक पॉइंट अगला लिखो, 9 कर लिया, 10 कर लिया, 11 पे आओ। बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखो, इट मींस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन it means a financial transaction or an economic event financial transaction or an economic event entered into by, अच्छा into तो बाद ना कॉमा लगा लियो, entered into by two parties and then recorded in the books of accounts. Recorded in the books of accounts, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब रिलेटेड टू मनी, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਬੁక్స్ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਔਰ ਐਂਟਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ट्रांजैक्शन ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਰਦਾ ਖੁਦ ਨਾ, ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ। खुद ਨੂੰ मैं समान सेल कर सकता? नहीं, कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व होगी, मींस एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज एंड देन दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे, ठीक है। देखो, एवरी ट्रांजैक्शन every transaction has two aspects
ड्यूअल एस्पेक्ट, केड़े केड़े? एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट। डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। ठीक है, डेबिट नो सिंबॉलिक कितना कर दें, डीआर ना, क्रेडिट नो सीआर। कोई डाउट है ना? एग्जांपल लिखो, ट्रांजैक्शन का एग्जांपल। मशीनरी परचेज्ड बाय रवि फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। मशीनरी परचेज्ड बाय रवि फ्रॉम सुरेश फॉर कैश, एक ट्रांजैक्शन ही है ना, दो पार्टीज ने की थी। ये देखो एग्जांपल बोल सकते हैं, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। कोई डाउट? क्लियर है ना? हले डेबिट एंड क्रेडिट ਤੇ ਆਪਾਂ डिटेल ਚ नहीं गए, ਉੱਥੇ भी जावांगे। ठीक है, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ? पर्सनल रियल के नॉमिनल? कितों स्टार्ट करना सी? रियल, तो मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लिखो, रियल अकाउंट रूल नो दोबारा नोट करो। डेबिट वर्ड बोलो कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, परचेस्ड गुड्स परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹3000। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹3000। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ ਕੀ? इन की आया की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ? गुड्स आए कि कैश आया? गुड्स आए। गुड्स नो की लिखता इन एंड आउट की गया कैश, यस और नो? इन की आया गुड्स, आउट की गया कैश। गुड्स नो जर्नल च कितना लिखते हो, किस नाम तो जब परचेज किया था?
ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਆਂਦੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ this one ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? never use the word goods in journal entries ਕੀ यूज करोगे अगर गुड्स परचेज ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? परचेजेस अकाउंट yes or no सेल ਕੀਤੇ ਤਾਂ सेल्स अकाउंट रिटर्न्स ਕੀਤੇ ਤਾਂ परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न ਅੱਜ ਕਾਦੀ जर्नल सोच रहे ਤੁਸੀਂ परचेज गुड्स ਦੀ है ना सो की एंट्री नाम की यूज करना गुड्स यूज करना या परचेजेस परचेजेस ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਏ ਗੁੱਡਸ ਹੈ परचेज ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਇਹਦੀ ਆਊਗੀ परचेजेस अकाउंट डेबिट ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट कम्स इन ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਦ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ परचेजेस अकाउंट डेबिट परचेजेस अकाउंट डेबिट ਨਾਲ ਕੀ ਪੜਿਆ ਰੂਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ व्हाट गोस आउट आउट ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ कैश ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ टू कैश अकाउंट डेबिट वाले ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ उस अकाउंट का नाम लिख के डेबिट कर दो क्रेडिट वाले ने लिख दे टू दैट अकाउंट सो जर्नल एंट्री की बन गई थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है 3000 है ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜਰਨਲ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡੈਬਿਟ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ 3000 ਪਾ ਦੋਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਮਾਉਂਟਸ ਵੀ 3000 ਪਾ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ ਦਾ ਕਾਲਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਦਾ ਕਾਲਮ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ ਐਂਡ ਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰਾ ਜਰਨਲ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ ਔਰ ਅਮਾਉਂਟਸ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਮੇਨ ਅਮਾਉਂਟਸ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਰਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ जर्नल एंट्री तो समझ आया ना पहले ठीक है राजा सेकंड एंट्री करिए लिखो परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 10,000 अच्छा अगर कुछ नहीं दसिया भी नॉर्मल की मनोगे कि इस मशीन के अगेंस्ट तुसी कैश पे किया कुछ नहीं ना लिखा भी कैश पे किया 10,000 ठीक है सो मैं दसो इन आया कि थोड़े को आया कि हूं अज मशीनरी आई गुड्स तो नहीं है साडे गुड्स नहीं लिखना ठीक है आई की मशीनरी है एसेट है साडा गया कि कैश रूल की कहना रियल अकाउंट साडा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब एंट्री की बनोगी फिर बोलो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बोलो यस नो क्लियर होगी जर्नल भी नाल ठीक है राजा थर्ड लिखो परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 3,000 फ्रॉम मोहन फ्रॉम मोहन बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाने लगा ध्यान ना सुने फ्रॉम मोहन कि कितने फॉर कैश लिखे हाँ दसिया कि गुड्स किन्ने दे 3,000 फॉर कैश नहीं लिखा बट पर्सन का नाम देता फिर तुसी की अज्यूम करोगे कि इस पर्सन तो तुसी उधार ते लिया क्रेडिट ते लिया ये अज्यूम करोगे क्रेडिट ते लिया ठीक है एक इतने लाइन लिख लो मतलब फ्रॉम मोहन वाली चीज अंडरलाइन करके इतने स्टार पा लो टू बी कंसिडर्ड एज
क्रेडिट परचेज, ठीक है। फॉर फ्रॉम मोहन तो की समझ आया, क्रेडिट परचेज बनना कैसे। हुन दसो आया कि गुड्स आए, परचेजेस दी फॉर्म चाहिए सुनो, तो परचेजेस ही नाम यूज करते हैं ना। गुड्स आए, गया कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, गया कुछ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸਮਾਨ, ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਦਿੱਤਾ कुछ, मतलब आउट कुछ भी नहीं। इन की आया, गुड्स परचेजेस दी फॉर्म, आउट की गया नथिंग। ਹੁਣ ਜਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਡੈਬਿਟ ਵਾਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਆਊਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਰਨਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਪਰਚੇजेस ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਇਨ ਆਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਇਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਆਊਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੇ ਬੀ। ਜਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਇਨ ਆ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਡਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਰਚੇजेस, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਬਿਟ ਵਾਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪਰਚੇजेस ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਆਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ, ਯੈਸ অর নো, ਯੈਸ অর नो। परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, सारे एग्री कर दे। इनता पता, पर की आउट गया कुछ नहीं। जद सानू इन या आउट चो एक चीज मिस हो गई, मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਗੇਨ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹੁਣੀ, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 3000 फ्रॉम मोहन, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, इनकम की गल तो नहीं है। देखो दोबारा सुनो, इन समझ आ गया, मीन डेबिट वाला पॉइंट तो मिल गया, क्रेडिट नहीं मिले, तो क्रेडिट अगर आता यूज नहीं होया आउट वाला रूल, फिर क्रेडिट या था आ यूज होगा या आ वाला यूज होगा, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई। नॉमिनल दा रूल क्रेडिट्स की कह रहा है इनकम्स एंड गेन्स की, कोई इनकम दी एंट्री है, कोई मैं इंटरेस्ट अर्न किया, कुछ अर्न किया, उधर का पॉइंट है नहीं। कादी एंट्री है कि कोई गिवर है इतने, जब मैं गुड्स परचेज किते कि मोहन गिवर ऑफ द गुड्स सीगा, यस और नो, गिवर, आ रूल लग जाऊगा, क्रेडिट द गिवर। कदों लगना, जब इन या आउट चो एक चीज मिसिंग आ, तो उत्थे आके तुसीं सोचना कि हुण इत्थे नॉमिनल दा रूल लगूगा या पर्सनल दा लगूगा, ठीक है। सो इत्थे एंट्री की बन जानी, हुण क्रेडिट च कौन जाऊगा, मोहन, गिवर साडा, जिन्हें सानू गुड्स दिते, जिन्हें सानू गुड्स दिते। मीन साडी इस जर्नल च की आऊगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट आ गया टू मोहन अकाउंट। इत्थे रूल केड़ा यूज हो गया, क्रेडिट द गिवर वाला, यस और नो, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है जी। फोर्थ लिखो, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 3000 फ्रॉम मोहन फ्रॉम मोहन फॉर कैश। ठीक है, लिख लिया, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 3000 फ्रॉम मोहन फॉर कैश। हूं दसो, चाहे पर्सन का नाम गिवन है, कैश दसता उन्हें नाम, मीन्स आया कि फिर गुड्स
in the form of purchases और गए आगे कैश कि दोबारा ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ इन एंड आउट क्लियरली मिल गया तो रूल इधर ही लग जाऊगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट मींस परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3000 yes or no नेक्स्ट देखो डिपॉजिटेड रुपीज 5000 इनटू बैंक उसी गए 5000 रुपीज बैंक च डिपॉजिट करते जाके दसो आया कि केड़ी चीज इंक्रीज हुई ਤੁਹਾਡੇ बैंक बैलेंस कैश चला गया बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज की होया बिजनेस दा बैंक बैलेंस और चला की गया कैश कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज हो गया एंट्री की पाओगे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्लियर है जा कोई डाउट है तो दोस्तों क्लियर है सफिशिएंट एक्चुअली है ना जो टर्म्स सीखे वो भी क्लियर कर लेने एक बार दोबारा रिवाइज कर लेने और जर्नल्स तक जिस पैटर्न मैं स्टार्ट करवाया रिकॉल कर लेना हम थोड़ा रोज नाला जर्नल्स वाला पैटर्न चलना शुरू हो जाओ ठीक है बेस तो टाइप तो जीरो तो स्टार्ट हो गया प्रॉपर